آج کا میسج نہایت انٹرسٹنگ ہے اور نہایت جو ہے سنجیدہ اور سیکھنے والا ہے اور عمل میں لانے والا ہے. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ میں زیادہ تر جو کلام دیتا ہوں یا سناتا ہوں وہ با موقع ہوتے ہیں. اور سلیمان بادشاہ کہتا ہے کہ با موقع بات کیا خوب ہے. جو بات موقع پہ ہو اس کی کیا ہی بات ہے. اور ایسی بات جو ہے وہ اثر بھی کرتی ہے. خدا کا کلام لکھا ہوا ہے کہ جس روپ میں بھی آیا لیکن اثر دکھا کر رہا جس روپ میں بھی آیا. تو یاد رہے کہ آج کا کلام ہماری زندگیوں پر اثر بھی کرے گا. تو آئیے ہم غور کریں خدا کے کلام کو. آج ہم شریر آدمی کے تعلق سے خدا کے کلام کو سیکھنے جا رہے ہیں. دنیا میں جو لوگ جو جسم میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں ان کی بابت خدا کے کلام کو سیکھنے جا رہے ہیں. آج ہم دیکھیں گے کہ جو جسم میں لوگ ہیں ہمیں ان کے ساتھ تعلق رکھنا ہے یا کہ نہیں رکھنا. یعنی کہ کون سے وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمیں تعلق رکھنا ہے اور کون سے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ ہم نے بالکل تعلق نہیں رکھنا, تعلق نہیں بنانا. ایسے لوگوں کو جو ہے اپنے اندر ٹھیک ہے اپنے گھرانہ میں نہ اتارنا ہے, نہ اپنی ٹیم کا حصہ بنانا ہے اور نہ ہی جو ہے انہیں ہمیں اپنا دوست بنانا ہے. چونکہ آئیے ہم غور کرتے ہیں بائبل کی تعلیم ہمیں کیا سکھا رہی ہے. اور اگر ہم کلام کے مطابق نہ چلے تو ضرور ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر جو ہے سزا پائیں گے, خدا سے بھی پائیں گے, دنیا سے بھی پائیں گے. ٹھیک ہے, اگر ہم خدا کے کلام کے عین مطابق نہ چلے. یہاں پر خدا کے کلام میں پہلا جو کرنتھیوں ہے اس کا باب نمبر 5 اور اس کی جو آیت نمبر ہے وہ 9 ہے. 9 سے جب ہم اسے شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم پہلا کرنتھیوں باب نمبر 5 اس کی آیت نمبر 1 بھی پڑھیں تو اس میں بھی ہمیں جو نیچے ہم آیت نمبر اس کی پڑھیں گے 11 اس میں ہمیں ذکر ملے گا اور یہ خدا رو کی مرضی سے ہم اس کو بھی پڑھیں گے. اچھا جی, یہاں پر پالوس رسول جب کرنتھیوں کے نام وہاں کی کلیسیا کو خط لکھتا ہے, کیا کرتا ہے؟ خط لکھتا ہے. تو اپنے خط میں یہ سکھاتا ہے, جب یہ باب نمبر 5 لکھتا ہے نا تو اس کی آیت نمبر 9 لکھتا ہے تو کہتا ہے میں نے اپنے خط میں تم کو یہ لکھا تھا کہ حرام کاروں سے صحبت نہ رکھنا. ٹھیک ہے, جو حرام کار ہوتے ہیں نا, حرام کار پتہ کسے کہا جاتا ہے؟ جو زنا کار ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں؟ جو زنا کار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, جو کیا کرتے ہیں؟ زانی ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں؟ جو زنا کرتے ہیں, جو زنا کے زمرے میں آتے ہیں, زنا میں رہتے ہیں, گناہ میں رہتے ہیں, ان کو حرام کار بھی کہا گیا. تے جے کسی نو حرام کار کہہ دیے یا حرامی کہے تو اس کے لیے یہ لفظ اچھا ہے. ٹھیک ہے, میں یہ سمجھوں گا کہ اگر کوئی فاحشہ عورت بھی ہو نا, اسے اس کے منہ پر حرام کار کہہ دے نا اس کو, ٹھیک ہے, یا حرامی کہہ دے یا حرام کار کہہ دے تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی برداشت نہیں کرے گی. حالانکہ وہ تو ہے ہی فاحشہ ہے, وہ تو ہے ہی زانی ہے, وہ تو ہے ہی زناکار ہے, وہ تو ہے ہی بازارو. ٹھیک ہے, لیکن وہ برداشت نہیں کرے گی. آئیے غور کریں کیا کہہ رہا ہے پالوس رسول کرنتھیوں کے نام جب خط لکھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے تم کو یہ لکھا تھا کہ حرام کاروں سے صحبت نہ رکھنا. ایک ہوتی اچھی صحبت. کون سی صحبت؟ ایک صحبت ہوتی بری. دو طرح کی صحبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کیسی صحبت میں رہتے ہیں, آپ کیسی صحبت رکھتے ہیں؟ اچھی صحبت رکھتے ہیں یا پھر بری صحبت رکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اب دیکھو کہ جو روحانی ہے نا وہ بری صحبت نہیں رکھتے. ٹھیک ہے, یعنی کہ حرام کاروں سے اپنا تعلق نہیں رکھتے. اچھا, وہاں کی کلیسیا میں مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو کلیسیا مسیح میں آئی تھی نا, مطلب جنہوں نے مسیح کو قبول کیا, اب یہ ان کو کلام سکھایا گیا تھا کہ میں نے تم کو
ये लिखा था, यानी खत में, कि हराम कारों से सोबत ना रखना। अच्छा, अब बताया गया कि जो ऐसे लोग हैं उनके साथ आपने अपना ताल्लुक नहीं रखना। क्या कर नहीं रखना? ताल्लुक नहीं रखना। ठीक है जी। तो इन्होंने क्या किया, चूंकि इन्होंने मसीह को पहन लिया था, ये मसीह में आ चुके थे, इन्होंने सोबत रखने वालों को, जो बुरी सोबत रखते थे, जो हराम कार थे, उनको बिल्कुल मिलना और बुलाना छोड़ दिया। अच्छा, जब पौलुस रसूल को ये इल्म हुआ, ये पता लगा, क्या हुआ? पौलुस रसूल तक ये बात पहुंची कि ये तो बिल्कुल ही उनको छोड़ गए हैं। अच्छा, आइए जरा देखें कि पौलुस रसूल उनको क्या अपने खत में लिखता है। कहता है, ये तो नहीं कि बिल्कुल दुनिया के हराम कारों को, किससे जी? दुनिया के हराम कारों या लालचियों या जालिमों या बुत परस्तों से मिलना ही नहीं। अब देखो, बाज़ोकात हम बहुत ज्यादा रूहानी हो जाते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज्यादा, पंजाबी च कहते हाजी हो जाने असी। क्या हो जाते हैं? इधर ध्यान दे, क्या हो जाते हैं जी? हाजी। ठीक है, हम बहुत ज्यादा ईमानदार हो जाते हैं, बहुत ज्यादा नेक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा जो है हम रास्तबाज हो जाते हैं। और जब हम होते हैं ना, तो हम ऐसे लोगों से बिल्कुल अपने ताल्लुक खत्म कर लेते हैं। क्या करते हैं? बिल्कुल ताल्लुक। अच्छा, पौलुस रसूल ने बताया कौन कौन से वो लोग हैं। लिखा है कि ये तो नहीं कि बिल्कुल दुनिया के हराम कारों, नंबर एक। किसको जी? नंबर एक, तो बोले जरा बुलंद आवाज में, किसको? हराम कारों। नंबर दो, लालचियों। किसको जी? नंबर तीन, जालिमों। किसको जी? नंबर चार, या बुत परस्तों। ये चार तरह के लोग हैं जी। लिखा बुत परस्तों से मिलना ही नहीं। लिखा क्योंकि इस सूरत में तो तुम दुनिया ही से निकल जाना पड़ता, तुमको इस दुनिया से निकल जाना पड़ता। अब जाहिर बात है, कलाम कहता है कि सारी दुनिया इब्लीस के कब्जे में है। अब घर घर हरामकारी हो रही है। मैं गलत तो नहीं कह रहा? हो रही है कि नहीं? शायद कोई घर बचा हो, शायद कोई घर, वरना घर घर के अंदर हरामकारी हो रही है। और अगर फेसबुक यूट्यूब देखें तो उसमें जब हम उसको देखते हैं तो हरामकारी को देखते हैं तो बहन भाई, भाई भाई, बहने बहने आपस में हरामकारी कर रहे हैं घरों के अंदर। ठीक है, तो इसलिए याद रहे कि हरामकारी आम हो चुकी हुई है। ये लालची जो हैं ये आम हो चुके हैं, ये बुत परस्त जो हैं ये आम हो चुके हुए हैं। ठीक है, फिर जालिम जो है ये भी आम हो चुके हैं। तो दुनिया में तो सारे आपको ये मिलेंगे। अगर आपने इनको सलाम ना किया तो आप तो दुनिया से निकल जाएंगे, फिर उन्होंने तो तुहानू काट देना। मोहब्बत के खिलाफ इब्लीस तो पहले ही है, वो तो बहुत नफरत करता है। जो मोहब्बत करता है खुदा और उसके लोगों से, वो उनके खिलाफ है। अच्छा, अब आपने करना क्या? अब सुन ले जरा, आपने इनसे ताल्लुक तो नहीं रखना, इनकी सोबत नहीं अपनानी, लेकिन जाते आते जब ये गुजरे ना, ठीक है, जैसे कोई हमसाया है, आप उसके घर आते नहीं हो, लेकिन जाते हुए आपने क्या करना है? सलाम करना है। क्या करना है? ठीक है, अब देखो, है तो वो बशर है ना भाई, खुदा ने तो नहीं ना उसके अंदर ये सारी चीजें डाली थी, वो तो इब्लीस ने डाली। तो इसका मतलब है कि वो खुद तो शैतान नहीं है। कलाम कहता है कि इंसान खुद शैतान नहीं, बल्कि उसके अंदर शैतान आ बसता है। कौन? शैतान आ बसता है। तो बशर होते हुए, खुदा की मखलूक, उसका बंदा होते हुए, हमें उसको सलाम की हद तक रखना है। किस हद तक रखना है? लेकिन अफसोस, अफसोस कि ऐसे लोगों को हम अपने घरों में ले आए हुए हैं। क्या ख्याल है? ठीक है, एक भाई, ये जमीला आबाद में, मैं नाम नहीं उसका लूंगा, उसने क्या किया, एक शराब बेचने वाला और पीने वाला और पिलाने वाला, तीनों कैटेगरी उसके अंदर। अच्छा, हुआ क्या, वो अब आता था और अय्याशी भी करता था घर में आकर, और उनको पैसे भी देता था। क्या देता था? मौजा लग दिया नहीं कि नहीं? बोलो, लग दिया ना। जे सानू कोई घर आके साडू हांडी दे भी पैसे दे दे ते सानू नशा भी कराए ते असी कहांगे यार कितना चंगा बंदा है।
ठीक है, लेकिन एक बात का ख्याल रहे, ये ना भूलना कि वो बंदे ने ताड़े वास्ते ना, ठीक है, बहुत बड़ा मसला भी खड़ा करना, ठीक है, बहुत आपके घर की बर्बादी उतारने वाला है वो, ठीक है। अब हुआ क्या, उस बंदे ने ना उसको क्या किया, ऑफर कराई, उसने ना कारें खरीद ली, ठीक है जी। अब उसने कारें रेंट में दे दी आगे। अब जब दी ना तो पता क्या हुआ, उससे वो पैसा दिया नहीं गया, वो बंदा तो छड़ गया जिसने उसको इस तरफ लगाया चंद पैसे दे के, ठीक है। और जब दिए नहीं ना कि उसे पैसे, अब जिनसे उसने अपना कारें ली थी, ठीक है, जाके, तो हुआ क्या, जिनकी कारें थी, जो मालिक थे ना कारों के, वो इनके घर आ गए और इन्होंने क्या किया, अपने घर को ताला लगाया, ठीक है, और ये तितर बितर हो गए। वो बंदा किथे गया, वो जरा पहले खुआ पिया रहा, ठीक है, और वो आवारा और खाना खराब हुए जी, ठीक है। और तकरीबन वो 3 साल इधर उधर, कभी किसी घर, कभी किसी घर, कभी किसी घर रहने लगे। तो इसलिए याद रहे कि खुदा का कलाम हमें मना कर रहा है ऐसे लोगों से कि एहो जनु ना ले आओ, ठीक है। मैं आम रूटीन में भी देखता हूं कि अभी तक हमारी जिंदगियों में बदलाव नहीं आया। आज भी यहां पर हर तरह का बंदा आ रहा है, जबकि ये खुदा का घर बन चुका हुआ। अब यहां पर ऐसे बंदों की कोई जरूरत नहीं है हमें। जो खुदा के घर नहीं ना आ सकता वो आउट है, उसे निकाल दो, ठीक है। मैं आगे आके बताऊंगा आगे आपको, ठीक है जी। अच्छा, तो यहां पर हमें समझ लग गई कि साड़ी यारी दोस्ती, ठीक है, जेड़े हेचे करने वाले ने ना, कौन हेचे करने वाले, ते जेड़े इंज सूटे भी लाने ने, ते शराबा भी पींदे ने, नशे भी करते ने, हमारा ताल्लुक इनसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, शैतान बड़ा चालाक जे। शैतान कहता है हम तो डूबे हैं सनम, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ठीक है जी। वो बदला ले रहे होते हैं आपसे, लेकिन सानू पता ही नहीं लगता पिया। साडे बच्चों को नशे ते लांदे पर सानू पता नहीं लगता पिया, ठीक है। कोई पिछला जो है वो हमसे बदला ले रहे हैं, कोई बड़ों का बदला ले रहे बच्चे आके, इत्थे ही आके रोजाना आकर गंद बोल रहे हैं, सानू पता नहीं लगता पिया, ठीक है। तो इसीलिए हमारे बच्चे, हम सारे खतरे में, किसमें है, खतरे में है, ठीक है। और इसमें खुदा का कोई कसूर नहीं है। खुदा तो आपके घर में उतरा है, लेकिन खुदा को हम उस तौर से नहीं ले रहे जिस तौर से वो आपको अमन देना चाह रहा है। वो तो अमन लेकर आ गया है, वो तो सुलह लेकर आ गया है, वो तो मोहब्बत लेकर आ गया है, वो नई जिंदगी लेकर आ गया है, लेकिन हम लेना नहीं चाह रहे उससे, ठीक है। सिर्फ एक दिन लगा लेना चर्च, ठीक है, और खुदा के खादमों को उतार लेना, ये काफी नहीं है। देखो, हमसे अच्छी वो कलीसिया थी जो करंथियों की कलीसिया थी। उन्होंने इतनी नफरत करना शुरू कर दी ऐसे लोगों के साथ कि उनको सलाम करना छोड़ दिया था, ठीक है। जिन्हों जड़ा भी आए ना, इधर की लाना, चल भाई बाहर, ओ थे बूहे तो बाहर, ओ बल्कि ना सड़क ते चल, उथे मैं आ रहा, ठीक है। भले आपका कोई रिश्तेदार है, गैर है, उनको भाई उधर चल, जेड़ा हराम करेगा उनको उधर चल, जो लालची उसको को चल उधर भाई, उथे मैं तेन मिलना की कहने, चल यार उधर, ठीक है। जो बुत प्रस्त है, जो लालची है, उसे को भाई चल भाई उधर, ठीक है। कोई काम नहीं है हमारे इनके साथ। सलाम जाते आते करो, मैं खुद करता हूं, मैं दीन इस्लाम को, ठीक है, और मुआशरे में रहने वाले लोगों को, मैं जिस जगह पर भी होता हूं, मैं पहल करता हूं सलाम में, भले मैं उनकी सोबत ना अपनाऊं, उनकी सोबत में ना रहूं। अच्छा जी, अब सुन ले, जरा सुन ले आगे क्या लिखा है खुदा के कलाम में। लेकिन मैंने तुमको दर हकीकत ये लिखा था कि अगर कोई, लिखा है, अगर कोई भाई कहलाकर हरामकार या लालची या बुत प्रस्त या गाली देने वाला या शराबी या जालिम हो, कौन कौन सा जी, हरामकार, लालची या बुत प्रस्त या गाली देने वाला, केड़ा जी, ठीक है। इत्थे ते एहो जे भी यार है जे हाली गल नहीं करते ते भैन दी गाल करते हैं, तो उस तो बाद गल करते हैं कोई,
ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਵਾ। ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਭੈਣ ਦੀ ਵੀ, ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਵੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਹੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਹੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ सुनी जा रहे हैं। गाली तक देने वाला आपका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखा है शराबी हो या जालिम हो तो उससे सोबत ना रखो, बल्कि ऐसे के साथ खाना तक ना खाना। आओ होना इस पास से कितना, देखो पहले नंबर पे मिलना नहीं है, रास्ते में मिल जाए तो सलाम करना, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि ऐसों के साथ खाना नहीं खाना। क्या नहीं करना, ठीक है। आज के बाद उनके साथ खाना पीना क्या करो, खत्म करो, ठीक है। मैंने क्यों कहा कि ओ थे बाहर मिलो, घर नहीं लाना इनको, ठीक है। उधर भाई उधर चलो, चलो भाई सारे, ठीक है। मेरे दादा बड़ा अच्छा करते होते थे, दादे ने देख लेना ना कि कोई शरारती है कज़न विचों, वो आया होर हिसाब दे नाल घर, ठीक है। और उनको पता क्या, वो ज़्यादा थोड़ी देर हो जानी ना उनको बैठे हुए कज़नों को, ठीक है। उन्होंने कहना चलो चलो अपने अपने घर, चलो भाई चलो शाम हो गई, चलो चलो लोए लोए अपने घर, तरीके से ना कज़ना ਨੂੰ दुला देना, चूँकि वो और शरारत से आए हुए थे, ठीक है। वो और जो है अपने अंदर गंदी सोच हवस लेकर आए होते थे, तो इसलिए दादाजी उनको कहते चलो भाई निकलो इधर, ठीक है जी। तो आप भी ऐसा ही करें, ओके। अच्छा आगे क्या लिखा है कि ऐसा नहीं कि तुम अंदर वालों पर हुक्म करते हो, किस पर जी, मगर बाहर वालों पर खुदा हुक्म करता है। किन पर, बाहर वालों पर खुदा हुक्म करता है। हम अंदर वालों पर कर रहे हैं, खुदा किन पर कर रहा है, बाहर वालों पर। अच्छा आगे क्या लिखा है, बस उस शरीर आदमी को अपने दरमियान से निकाल दो। हेलो जी, हम तीसरी गाल भी आ गई है। पहली बात क्या थी कि इनसे मिलना नहीं, सिर्फ सलाम रखना। दूसरी बात क्या सिखाई कि ऐसों के साथ खाना तक नहीं खाना, ठीक है। नंबर 2, तीसरे नंबर पे क्या करना है कि ये शरीर है, ठीक है, दुनिया इब्लीस के कब्जा में है, शरीर बनी हुई है, इसको आपने अपने अंदर से निकाल डालना है, अपने दरमियान से निकालना। एक तो अंदरों कड्डो, ठीक है, इधरों अंदरों, क्योंकि अंदर है तो ऐसे लिए तो अंदर आ रहे हैं। इत्थे जे इत्थे अंदर ना हो ना, इत्थे आ नहीं सकता, उत्थे नहीं आ सकता, बूहे बाहर ही होएगा, ठीक है। और फिर दूसरे नंबर पे जो दरमियान में है आपके, ठीक है, दरमियान में आपका दोस्त बना झूठा दोस्त, कौन, अंदरों शैतान जे, वो आया शैतानी करन, ठीक है जी, शैतानी फैलाने आया है, कोई ऐसा काम करने आया है जिससे कि वो आपका खाना खराब और सत्यानाश करके रख दे। क्या करके रख दे, खाना खराब ते सत्यानाश करके रख दे इस घर दा। और हमें नहीं पता लग रहा, जो छीदा मिदा नत्तू पत्तू सारे बड़े हुए ने, कड्डो इन्हां सारियां नूं बाहर। मेरे घर आए, आप विजिट करें, आपको कोई भी, ठीक है, हमसाया, हालांकि नाल दा हमसाया, मैनू पता मेरी बुढ़ी जवान है, ठीक है, मैनू पता मेरी बच्ची जवान हो रही है, ठीक है, गल करनी हूँ उधरों बाहर, बूहो बाहर होके गल कर, किधर अंदर बढ़ रहा, किधर देख रहे हैं अंदर, चल उधर। अभी पीछे की बात है, मैं शादी पूरे रह कर आया हूँ, और मुंडा ना उत्तों गला करे छत दे उत्तों, बुढ़ी मेरी थले रोटियां बना रही। मैंने कह दिया उसको, मैं क्या भाई जी अज तो बाद इतों, मैं क्या अपनी बीवी ने, मैं कहा बुढ़ी नूं जाके कह कि ए छत दे उत्तों गल ना हुण कोई करे, ठीक है। अंकल जी मैं की कीता, अंकल जी मैं की कीता, मैं क्या मैनू पता जेड़ा तू कीता या जो करना है, अगों शैतान ने तेरे अंदर जो काम करना है वो मैनू पता वे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, दरवाजे से अंदर आ गया, शाम के टाइम ना वो लाइट गई थी, सीधा ही अभिषेक ते है किन्ने साल का, मेरे तो कोई 3 साल छोटा होना, सीधा अंदर आ गया, मैं अंदर ही बैठा। फिर मैंने डांटा, मैंने पैगाम भेजा, मैं क्या अंदर क्यों आया वे, यदि बुढ़ी ने कहो अज तो बाद दरवाजा खड़काए तो पीछे खलो गए, ठीक है। क्या ये क्या तरीका कार है, वो जेड़ा मुंह चुक रहा अंदर आ रहा, जेड़ा चुक रहा अंदर आ रहा, जेड़ा चुक रहा अंदर आ रहा, ये की तरीका। दीन इस्लाम में रहते हैं लोग, हमें छितर मार रहे हैं, हम पर हंस रहे हैं कि इनमें कोई पर्दा नहीं। एक दफा पता क्या हुआ भाई साहब,
डॉक्टर साहब, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं दीन इस्लाम में हमसाओं में गया, वहाँ पे मतलब मुसलमानों का घर था, 7 मुसलमान थे, ठीक है। वो कितने झाती जी पै गई उत्थे, मतलब दीवार छोटी थी छत से, उन्हें बुला लिया बाहर मनु, ठीक है, मुझे बाहर बुला लिया। हाँ जी भाई जी, उत्तों क्यों वेख्या? मैंने उसे बताया, मैंने कहा जी हम में पर्दा बहुत है, ठीक है। तो मैंने उसको समझाने की कोशिश की, मैंने कहा कोई चीज़ गिरी इसलिए वो ज़रा नीचे नज़र पड़ गई है। उन्होंने कहा क्यों वेख्या, ठीक है क्यों? मैंने उसे बता दिया, उसे समझ, मैंने कहा मैं अपने दीन का मौलवी हूँ, मैं समझता हूँ इन सारी चीज़ों को, कलाम को समझता हूँ। अच्छा वो साढ़े तो वध निकले गो, और वध किस तरह निकले? उसने एक बात मुझे कर दी, कहता जी आप में पर्दा है। मैंने कहा मैं बता रहा हूँ कि हम में पर्दा है, ठीक है, और तो में पर्दा है, ठीक है जी, वो अमल करे इंसान ना करे। लेकिन उसने एक बात कही, कहते कि साडा जिहड़ा सक्का भरा है ना, सक्का, मेरा सक्का भरा, ठीक है, वो मेरी जो बीवी है, उसने बताया, कहता मेरी जो बीवी है वो पर्दे में उससे बात करेगा, डायरेक्ट बात नहीं करेगा। यहां तक सख्ती है उनके कुरान के अंदर, ठीक है। तो असी घोड़ा खोता सारे किता होया, ये मैं नहीं कह रहा, कलाम में लिखा ना हो घोड़िया खचरा वांगर तू ते कुछ भी नहीं है, समझो ना। अब देखो कि जो शरीर था उन्हें काम लाता है ना, बच्चे ਨੂੰ ला दिता, शरीर ने लगाया ना, वो केड़ा दुध ना धुलिया सी, वो केड़ा इतवार है जो उन्होंने छड्डिया नहीं, वो तो चर्च ही नहीं आता, ठीक है। आए दिन थाने में जो है उसको बुलाया जाता, आए दिन उसकी फाइलें खुली हैं, उसके केस चल रहे हैं, हर हफ्ते बाद महीने बाद उसको लाया जाता है, ले गया वो इत्थे ही आंदा सी भी, ठीक है, उसकी भी यारी दोस्ती यही थी। हाँ जी जी, अच्छा अच्छा, तो याद रहे कि यहाँ पर वो सामने रह चुका हुआ है, ठीक है। जब हमने मिलना ही नहीं है, जब हमने किसी में बैठना ही नहीं, जब हमने वक्त ही नहीं गुजारना, तो फिर इल्ज़ाम कौन लगाएगा? मैं भी तो हूँ ना, ठीक है। अभी से जब ये पीछे की बात है, एक लड़का आ गया जनाब हमारे घर में, ठीक है, पठान था, वो आ गया, अभिषेक कहाँ है, अभिषेक कहाँ है, अभिषेक कहाँ है? मैं क्या होया कि भाई बताओ हुआ क्या है? जी मेरे अपना ना पैर दे उत्तों ना मोटरसाइकिल लगा के कभी इंज करता सी, कभी इंज तो कभी इंज तो कभी इंज, ठीक है। अब खैर वो आया तो इसको छत पे भेज दिया था इसकी माँ ने। अब हुआ कि आप सुन ले मेरी बात, वहां पे बच्चा वो आया है, क्यों आया शिकायत लेके? इसका मतलब है कि उसने ये हरकत की है, और अगर ना की हो तो उसकी जुर्रत है, उन्हें वो तो कुट खा के जानी है, लता बाबा तुड़ा के जानी है, ठीक है। कोई ऐसे तो नहीं ना आ जाता, कोई ऐसे तो नहीं ना इल्ज़ाम लग जाता, कहीं ना कहीं पर हमारे बच्चे गलत हैं, कहीं ना कहीं हम गलत हैं। तो इसलिए अपने आप को जो है ना, ठीक है, हम बदलें, ठीक है। कोई नया माहौल जो बाइबली माहौल है, ठीक है, जो खुदाई माहौल है, जो रूहानी माहौल है, उससे अपनाना शुरू करो। ये ख़त्म करो, ये किस्सा कहानी, ये बैठना, ये करना, ये सारा कुछ अपने उनको भी पता लग जाए कि वाकई आदिल बदल चुका है, आदिल की बीवी बदल चुकी है, ठीक है, उसकी औलाद बदल रही है। शैतान चाह रहा है कि आपको पूरी पूरी निजात ना लेने दे, ठीक है। 4 साल से चर्च लगा रहे हैं, क्यों हमें बरकत नहीं मिली? इसलिए कि अभी तक हम कामिल तौर पर खुदा के साथ नहीं चल रहे, इसमें वजह यह भी है। तो आइए, आज जो शरीर आकर हमारे घर की बर्बादी उतार रहा है, उसी उन्हें काट दी है, भले वो मोबाइल है, ठीक है, भले वो LED है, ठीक है जी, भले वो दोस्त है, ओनू काट ही दो, वो अपने दरमियान से काट दो, खत्म कर दो। अब देखो एक बच्चा मोबाइल का सही इस्तेमाल नहीं ले रहा, तो उसे छीन लो, खत्म, बुराई खत्म, शरीरपन खत्म, शरारत खत्म। तो इसलिए आज आपने सुन लिया खुदा के कलाम में क्या लिखा था, ठीक है, कि शरीर आदमी को अपने अंदर से निकाल डालो, ठीक है। आज के बाद हमने उनको अपने घर में लाना है जो खुदा के बरगजीदा हैं, जो चुने हुए खुदा के रसूल हैं, जो उसके परस्तार हैं, जो उसके मुकद्दस लोग हैं, उनको लेकर आना है। खुदा आज के कलाम के वसीला खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।